सो सबसे पहले गुड इवनिंग आप सबको, और बहुत बहुत बधाई, आपके नाम के आगे सीएमए प्रीफिक्स लग चुका है। नाउ यू आर अ क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब अपने करियर का एक माइलस्टोन आपने अचीव कर लिया है एंड यू आर हेडिंग दी नेक्स्ट वन। एंड अब आप जॉब करने के लिए प्रोसेस में हैं, आप एक अच्छी नौकरी लेना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले मुझे बताइए, सो इज एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दिस हिंदी इन इंग्लिश, और नरसिम्हा you don't understand the Hindi? Ma'am, I don't know Hindi. You I will understand Hindi? understand English only. You are okay. You understand English only. Okay. Okay. Apart from Narsima, is there anyone else who don't understand Hindi? Yes, ma'am. Even I am not understanding. No, I'm not able. Anyone? Okay. So, Narsima, I'll translate everything in English, whatever, if by chance, if I speak something in Hindi, so you don't worry about it. And if anything, because I'll try my best to converse with you in English only. Okay, so Okay, thank you, ma'am. okay, yeah. So we are here for our campus placement training program, because because in for June 2024 your campus is approximately within 1 month आपका campus हो जाएगा. So we are here for the placement training program. Or first of all, I would like to tell you that this is a exclusive placement training program for the cost and management accountant, the qualified cost and management accountants. In today's session, what we are going to talk, like what we are going to do in next a month program. Okay, means till your campus, till the date you are not appearing in the campus, what we are going to do. So what is the pinpoint things what we are going to cover in this session, this program, campus placement training program. And the second most thing we are going to discuss in this program, two things: how to prepare your CV, and how to fill the form which you need to fulfill if you want to get shortlisting for your campus. Okay, so first of all, I would like to tell you that the content of today's session. Okay, so if anything you have a doubt, just let me know. Just let me know. You can type chat, or you can talk to me, whatever you wish, whatever in which manner you are comfortable. So in today's session, three things we are going to cover. First one is contents of campus placement. Let me write in detail. Yeah, contents of campus placement training. So you should know for what things we are going to prepare you. The second thing, how to fill your form. Okay, campus form, how to fill your form, and where you will get access to that form, what you need to mention in that form. All these things we are going to cover in this session. And the third thing, broad idea, how to create your CV, because this is very important thing. In this form, you have to upload your CV. So you must know what you need to cover up in your CV, what you need to mention in your CV. So let's talk about first what the things we are going to cover. And
as you know that since so many years, since 2010, we are in this campus placement training program. Okay. Now after COVID, we have shifted to this program on a online live mode and they recorded. But if someone who is in Jaipur and who wants to come to Jaipur and wants to join face-to-face program, this facility is also available. So classes are available in 3 modes. It's a face-to-face, it's a Zoom online live, and the recorded one. Okay, if you see our last video on a Zoom, Diksha ma'am took this video and she explained that how the program structure is, that there are 3 options: option A, option B, option C. So I'm not going to talk about that option A, option B, option C in this session because it has already explained in the last YouTube session, which was uploaded yesterday on our YouTube channel. So what we are going to cover broadly, first one is the interview preparation. Because this is the first and foremost, I would say that the last and most important thing, the interview preparation. In the interview preparation means like what you need to learn or what you need to unlearn and learn for your campus placement. So we are going to make you prepare for your interview in the upcoming campus. Okay. The CV preparation thing, we are going to cover the CV preparation thing. Whatever the CV you are going to what you are going to take in your campus, we are going to help you for preparing that CV. The campus form filing, in today's session, we are going to explain like how you need to fill the campus form, how you upload, where you get the access of the form, what things need to fill this form, because this form is very important. बहुत important है ये campus form filing. The reason behind it, your shortlisting is based only and only on this form, because this is the first information you are submitting for the campus placement to the ICMAI website. So the most important thing, the campus form, because in this form, you need to make sure double, twice, thrice, any mistake must not be done in this form, because whatever details you are mentioning in this form, you are shortlisting based on that form only. I would like to share an experience from our previous batches. There was one girl, right now she is in Prince Johnson. It's a cement manufacturing company, but what she did, she mentioned the wrong percentage of her campus of her final or inter exams in the campus form, or because she mentioned the wrong information, that's why बहुत थोड़ी company में she got the shortlisting. तो जब आप ये form भरें, you have to make sure thrice कि कोई भी information गलत नहीं होनी चाहिए, all information must right. Your articleship, work experience and questions, because in your interview, whatever you are mentioning your training experience in your CV, your interview will be going around that work experience, whatever mentioned. నువ్వు వాటర్ ఓపెన్ చేసి కర్సర్ పెట్టు. ఇగో ఇది 14 ఉంటది, ఇది 12 ఉంటది. Suman, please mute yourself. Please mute yourself. Narsima, please mute yourself. Okay, so work, because in our campus training program, we will have exclusive sessions by our experienced trainer, जो आपको केवल campus placement में whatever the questions you may be asked from your work experience side, उसके बारे में discussion होगा, exclusive session होगा, and it is not common for all. One-on-one sessions होते हैं. What is the meaning of one-on-one sessions? Because if you join our program, you send our CVs to us, and on the basis of your CVs, हम हर दिन slot decide करेंगे for 2 or 3 people for a 1 hour session, 15, 20, 25 minutes for one person. And in that session, the trainer, the faculty will take 1-to-1 session of the work experience round. So ऐसा नहीं होगा कि there will be 10, 12 people and सबके साथ एक साथ work experience के बारे में discussion हो रहा है. No, because every person has different work experience from their training. So this is one-on-one sessions, इसके ऊपर होते हैं. Lot of group discussions would be there, because group discussions will serve the 2 purposes. One, you will get the confidence how to speak in front of panel, and for few corporates, GD is a
essential part of their recruitment process. If you like, if you take example of Vedanta or ITC or Nestle, compulsory, mandatorily they do the group discussion sessions in their recruitment process. तो group discussions होंगे यहाँ पे. Mock interviews in this program, one mock interview is included with our experience panel, जहाँ पे आपको एक exclusive slot decide किया जाएगा with our mutual suitability, जो आपको सूट समय करता है, जो हमें सूट करता है, exclusive time आपको दिया जाएगा. And in that time slot, panel will take your mock interview. एक mock interview उसमें शामिल होगा, but you can get the facility if someone needs more mock interviews, they can buy. This is also feasible, but one mock interview is included in the this all program. The company profile, the reason behind it, because you know, everyone will not get the shortlisting in the same company. Everyone get shortlisting in a different company. So the interview question usually move around what company does. So definitely the company specific question, we make you prepare the company specific question. Suppose if someone gets the shortlisting in Nestle, someone gets in ITC Hotel, someone gets in ITC Food, someone gets Reliance Jio, someone get in L&T. So हर industry का business अलग है. So according to industry, according to your shortlisting, आपको industry specific questions prepare कराए जाते हैं. अभी how we know the industry specific questions? From our experience and from our alumni experience, because lots of DCCNs have already placed in different corporates. So whatever the question they have faced in their interview, they have shared with us, and we have a rich question bank, and we are going to share with you कि क्या questions आपको उस particular industry के interview में पूछे जा सकते हैं, और what you need to prepare for that particular industry. The HR question round, as Diksha ma'am explained, and I'm again explaining to you that there are three round the recruitment process. First one is GD, the second one is technical, and the third one is HR round. Okay, in the domain session we will make you prepare the technical thing. The technical thing means the domain session will around, we can say it as a domain session means, okay, let me explain in this way. Your recruitment process in a 3-stage. One is a GD round. The second one is a technical round. And the third one is a HR round. So for GD round, we will take multiple group discussions of you. Multiple group discussions होंगे जिसमें different topics we are going to provide you. You will do group discussion in that. We will observe you. We will assess you and make you understand that what mistakes you are doing. So day by day you will get improvement. So GD, because GD is an important thing. Few corporates with without clearing GD, you cannot go in an X round. So we'll make you practice about the GD. The second one is the technical round, and in a technical round, we will take the domain sessions. And what is the domain sessions? Because in an industry, you are going to get a different sort of profile, maybe the indirect taxation, maybe the direct taxation, maybe the costing, maybe the accounting. You know, so in a domain session, we will make you prepare for the accounting, for the costing, for the taxation, okay, for the DT and the IDT, law and audit, you know. So definitely you are not going to get profile of the law and the audit, but few PSUs, few public sector undertakings usually ask the questions from the law and the audit. And the DCCNs who have already placed in PSU, when they cracked their interview and they came and shared their experience with us, they told us that few of the PSUs, specifically PSUs, ask few questions from the law. And sometimes if they
going to provide you the audit profile. They can ask questions from the audit. If you go to our YouTube channel, there are a lot of CMAs who are working in an audit profile. So if a company is going to give you an audit profile, they can ask questions from the audit also. So we'll make you prepare for the law and audit. Accounting, definitely this is a part and parcel of a CMA profile. So experienced trainer will make you prepare for the accounting questions, the costing and the IDT part. Okay, so these are the, I would say, the heart of the your campus recruitment process, because कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होती who don't ask questions from the costing and IDT. Mandatorily hai. If you are sitting in a campus, definitely you come across the question from the costing and the IDT. So we are going to provide you a rich question bank from for the costing and the IDT questions. और अगर आप उतने questions भी prepare कर लेंगे, this is more than enough. Your interview is not going to cross that boundary. जो हमने एक rich question bank बना रखा है, आप मान लीजिए this is a boundary, और इस question bank से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. दिस इज आवर एक्सपीरियंस. ठीक है, ये हमारे जो डीसीसीएंस जो ऑलरेडी कैंपस में बैठ चुके हैं, जो जॉब ले चुके हैं, इस बाउंड्री, हमारे क्वेश्चन बैंक से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. तो चाहे वो लॉ हो, इधर ऑडिट और अकाउंटिंग और कॉस्टिंग और आईडीटी और इवन डायरेक्ट टैक्सेशन. ठीक है, इसका एक क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा. यस, बोलिए प्लीज. यस राहुल, प्लीज आस्क. मैम क्वेश्चन बैंक में कितने क्वेश्चन है? If I talk about the IDT, it would have around 100 questions. For the costing, it would have more than 60 questions. So अलग-अलग question bank में there is a अलग-अलग number of questions, and this is a मतलब I would say the utmost periphery of the preparation. उससे बाहर सवाल नहीं पूछे जाते. और ये question bank create कैसे हुआ? हमारे ही जो हमारी जो फैकल्टी है, जो हमारी टीम है, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कैंपस क्रैक कर चुके हैं, they have we call them specifically and ask what question you have been asked in a Nestle, what question you have been asked in a ITC. So उनके एक्सपीरियंस से एक रिच क्वेश्चन बैंक तैयार हुआ है. तो हमें एक इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव पता चल जाता है कि which industry is interested in asking which sort of questions. Okay Rahul, hope, am I clear? Okay ma'am. Okay. So yeah, at this stage, anyone has any doubt? The Rahul, Ankita, Faguni, Narsimha, Ravi, Suhil, Soni, Sparsh, Srishti, anyone? किसी को कोई भी डाउट हो जो अभी तक हमने बात की है, तो हम इसके बारे में और डिस्कशन कर सकते हैं. ओके, सो राहुल आस्क्ड, ये फ्री है या पेड है? सो राहुल, आप मैं ग्रुप में कल के सेशन का जो वीडियो है राहुल, आई विल शेयर दैट, सो यू कम टू नो दैट विच सेशंस आर फ्री, विच सेशंस आर पेड. ओके, बट मैं आपके लिए बता देती हूँ, जो डोमेन्स, जो टेक्निकल पार्ट होता है, जो हम लॉ, ऑडिट, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, टैक्सेशन वगैरह प्रिपेयर कराते हैं, दैट इज ऑल टुगेदर फ्री. बट CV specific question, the work experience, the mock interview and everything is paid. ओके, बाकी आपको दीक्षा मैम के वीडियो में डिटेल आपको मिल जाएगी, एंड इन अ ग्रुप आई विल शेयर दैट वीडियो, यस्टरडेज वीडियो. होप क्लियर. ओके, सृष्टि आज द क्वेश्चन बैंक कैसे मिल सकता है? सो व्हेन यू एनरोल फॉर द प्रोग्राम, यू विल हैव द क्वेश्चन बैंक. ओके, एनी अदर डाउट? इसके अलावा और कोई कुछ पूछना चाहता है? मैम क्वेश्चन बैंक फ्री है कि पेड है? Okay, Suhil, for the fee part and for the structure of the program, after this session, I will share a video in your group, so you can have, view that video and you can have an idea what is the program structure, which sessions are free, which are paid. Am I clear, Suhil? And the fee is very nominal. It's a 5,000 rupees only. You will get an idea from that YouTube video. Any other doubt? Anyone? So shall I move ahead? Okay.
चलिए चलिए बात करते हैं आगे। ठीक। So this is the and the third one is a HR round. HR round is a very crucial because through HR round, industry assess your personality, what kind of person you are. Okay, what are your strengths, what are your weakness, you can handle a team or not, you can be a good resource for future, आप कंपनी के लिए asset हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, your IQ, your emotional intelligence, ये सब HR round से assess होता है. So HR round is playing the equal importance as a technical one. तो एचआर राउंड के लिए आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है, डिफरेंट राउंड्स होते हैं, क्या एचआर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इन विच सिचुएशन यू नीड टू गिव विच आंसर, क्या आपको आंसर करना है, कैसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ये सब एचआर राउंड में प्रिपेयर किया जाता है. बिकॉज द जीडी, द टेक्निकल एंड द एचआर राउंड, इसी के बाद आपको कोई भी इंडस्ट्री असेस करेगी दैट वो आपको रिक्रूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. ये हमारे कैंपस ट्रेनिंग का पार्ट है. इसके अलावा और द सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मैंने आपको बात कह दी है. एंड द कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपने कभी देखा होगा कि बहुत बार आपको वर्ड्स की नीड नहीं होती है, आपके एक्सप्रेशन बहुत कुछ बता देते हैं. ठीक है, आप फंबल कर रहे हैं, आप स्ट्रेट नहीं बैठे हैं, आप आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सवाल आपसे पूछा जा रहा है पर आप कहीं और ही देख रहे हैं. तो दीज आर द कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज पार्ट विच प्लेज अ वेरी क्रूशियल थिंग व्हेन यू अपीयर इन एन इंटरव्यू राउंड. आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, हाउ यू ड्रेस अप. ठीक. अब ऐसे शादी वाले कपड़े तो नहीं पहन के चले गए हैं, बहुत सारी चीजें, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, आपको किस तरीके से प्रेजेंट होना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हाथों का मूवमेंट कैसा होना चाहिए, शोल्डर कैसे रखने चाहिए आपको, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन अ कम्युनिकेशन इन अ बॉडी लैंग्वेज पार्ट. क्योंकि आपने कभी नोटिस किया होगा, समटाइम अ पर्सनैलिटी shows up a lot, a confident personality. So आप कैसे दिखते हैं, हाउ योर फेस लुक्स, आप काले हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, इट डजेंट मैटर. ठीक है, आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो हम ये कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज पार्ट में कवर करते हैं. सो ये एक ब्रॉड आइडिया है व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस होल कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम. इसके अलावा इसमें अगर कोई और दिक्कत है तो आप बताइए, अदरवाइज हम अगले राउंड की तरफ चलते हैं. सो शैल आई मूव अहेड? Yes, ma'am. ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे. और अब मैं आपसे बात करूंगी आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के सेशन की, हाउ यू फिल द कैंपस फॉर्म. ठीक है, आई होप आपको आपकी स्क्रीन पर गूगल का ये एग्जामिनेशन रिजल्ट शो हो रहा होगा. ठीक है, बड़ी खूबसूरत सी चीज ये दिखती है बिकॉज कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, है ना, इस एग्जामिनेशन रिजल्ट को देख के आपने पार्टी की होगी. ठीक है, यू एंजॉयड अ लॉट, फैमिली प्राउड ऑफ यू अ लॉट. तो आप गूगल पे जाइए एंड यू टाइप अ सीएमए रिजल्ट. वंस यू टाइप अ सीएमए रिजल्ट, ये आइकन आपके सामने खुलेंगे और यू जस्ट क्लिक द एग्जामिनेशन रिजल्ट. ओके, वंस यू क्लिक द एग्जामिनेशन रिजल्ट, आपके सामने 3 ऑप्शंस खुलेंगे एंड द फाइनल रिजल्ट. Check your result online. You just click on the check your result online. Okay, now put your registration number. I am putting a registration number of one of our student. Just a minute. So I am putting a registration number here.
ओके, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर पुट करेंगे इट विल शो अप योर डिस्प्ले रिजल्ट. दिस इज अ स्पर्श रिजल्ट. स्पर्श भी हमारे साथ इसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं. जैसे ही आप ये रिजल्ट ओपन करेंगे, आप देखिए इन अ डाउनवर्ड साइड देयर इज अ लिंक, प्लीज फिल ऑनलाइन फॉर्म एंड अपलोड योर CMA रिजल्ट, अपलोड योर रिज्यूमे. ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए. नाउ यू नीड टू पुट अगेन योर रजिस्ट्रेशन नंबर. Okay, so दिस इज दी योर फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म. जैसे ही आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को खोलेंगे, ओपन करेंगे, यू विल गेट अ प्री फिल्ड डिटेल्स. लाइक यू विल गेट अ प्री फिल्ड डिटेल्स, आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर. नाउ यू व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना है अब आप देखिए. ठीक है, आपको क्या करना है. यहां पर आपको आपका जेंडर, आपका मैरिटल स्टेटस, फादर नेम, द कैटेगरी, द डेट ऑफ बर्थ, फिजिकल सिचुएशन, ईमेल एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव नंबर, ये सब मेंशन करना है. ठीक है, मेक श्योर डिटेल्स डालते समय थ्राइस आप अपनी डिटेल्स को चेक कीजिए, बिकॉज वॉट एवर मोबाइल नंबर यू आर मेंशनिंग हेयर, कैंपस में भी इससे कॉल आएगा उसी नंबर पे, उसी मेल आईडी पे, और लेटर ऑन भी अगर इंडस्ट्री आपसे कांटेक्ट करना चाहेगी तो इसी मेल आईडी और इसी फोन नंबर पे कांटेक्ट करेगी. तो डिटेल्स को बिल्कुल सही होना बहुत जरूरी है. ठीक है, इसके बाद आप देखिए आप, और आपको क्या डालना है. नाउ सेकंड पार्ट, आपकी पर्सनल डिटेल आपने मेंशन कर दी. नाउ द डिटेल्स ऑफ द क्वालिफिकेशन. डिटेल्स ऑफ द क्वालिफिकेशन आपका देखिए 10th, आपका 12th, आपका ग्रेजुएशन, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, इन विच ईयर यू हैव क्लियर्ड एंड व्हाट वर योर परसेंटेज, ये आपको मेंशन करना है. परसेंटेज फॉर्म में आपको मेंशन करना है. क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए. एनीवन, यहां तक कोई कंफ्यूजन है फॉर्म में किसी को? नो, ओके, चलिए. इसके बाद आपको क्या मेंशन करना है? इसके बाद आपको मेंशन करना है योर ICMAI क्वालिफिकेशन. योर ICMAI क्वालिफिकेशन मींस, देखिए यहां पे क्या मेंशन है, यहां पे क्या मेंशन है, आपका इंटरमीडिएट कब हुआ. ठीक है, आपका फाइनल कब हुआ, मतलब इंटरमीडिएट ग्रुप 1, ग्रुप 2, फाइनल ग्रुप 3, ग्रुप 4. ओके, अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देखिए, यहां पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिखा हुआ है. नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का मतलब आपने एक अटेम्प्ट में क्लियर किया है, 2 में किया है, 3 में किया है. फाइनल आपने एक अटेम्प्ट में किया है, 2 अटेम्प्ट में किया है. ठीक है, अब आप ये ध्यान से सुनिए. इफ यू क्लियर योर बोथ ग्रुप इन फर्स्ट अटेम्प्ट, है ना, अगर आपने बोथ ग्रुप एक ही बार में क्लियर किया है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट कहलाएंगे. 2, अगर आपने अपना इंडिविजुअल ग्रुप एक एक अटेम्प्ट करके क्लियर किया है, फॉर एग्जांपल इन दिसंबर 2023 यू क्लियर्ड योर ग्रुप 1 एंड जून 2024 यू क्लियर योर ग्रुप 2. अगर ऐसा कंटिन्यूशन में अगर आपने क्लियर किया है एक एक ग्रुप करके एक एक बार में, even then you are called first attempt. ठीक है, if you have filled the examination form but you don't appear in an exam, तो वो attempt count नहीं होता. मीन्स आपने एग्जामिनेशन फॉर्म तो भरा बट आप एग्जाम में अपियर नहीं हुए तो वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होता. मीन्स देन यू आर कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली. किस ईयर में आपने पास किया है और क्या कितने आपके परसेंटेज है, जो भी मार्क्स आपको मिले हैं उसको डिवाइड कर लीजिए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 800 में से 400 नंबर मिले हैं तो ये आपको यहाँ पर परसेंटेज में यहाँ पर मेंशन करना है. ठीक है, अगर आपका इंटर में रैंक था या आपका फाइनल में रैंक था तो आप यहाँ पे रैंक मेंशन कर दें.
क्लियर? ICMAI क्वालिफिकेशन के बारे में आप बहुत ध्यान से भरिएगा, आपकी परसेंटेज, आपका अटेम्प्ट गलत नहीं होना चाहिए। एम आई क्लियर? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? सुमंत, विनय, स्पर्श, सृष्टि? Ma'am, hello ma'am. I have one small doubt, ma'am. या सुमंत, प्लीज आस्क। Ma'am, number of attempts has to be mentioned exact correctly, or can we mention false information? Okay, so yeah, okay, what answer you expect from me? Ma'am, to be honest, you will tell that we have to Because, mention exactly. so why I am saying you correct number of correct attempt, the reason behind it, suppose if you mention something wrong here, and at the time of the interview they will verify your original mark sheets, then Yeah, ma'am. so better to mention the correct number of attempts here only, because don't do fake, because ये आपकी credibility के ऊपर भी question create करता है। तो I do understand your intention, but बाद में cross verify हो जाएगा, so I think it doesn't serve any purpose. Okay, ma'am. Thank you. Yes, Ankita asked the aggregate of second and third year of graduation. Yes, आपको total 3 years of graduation का total करना है अंकिता, and you calculate your percentage. And one more thing, बहुत सारी ऐसी corporates होती हैं, they ask the throughout 10, 12 BCom 60%, right? So आप यहाँ पे अपना percentage बिल्कुल सही mention कीजिए, बिकॉज मैंने क्या बोला, दिस इज अ फॉर्म, आपकी शॉर्टलिस्टिंग केवल इसी फॉर्म पे डिपेंड करेगी। Which companies are going to call you for a campus interview, it depends only and only this form. तो आपका अगर 10th में 60% या above है, या 12th में और ग्रेजुएशन में है, तो मेंशन इट करेक्टली। अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपका 60% है और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं है, तो मेंशन मत करिए पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, सुहील ने पूछा कि ग्रुप 3 में वो फेल हो गए हैं एंड देन अगले बार उन्होंने बोथ ग्रुप क्लियर किया, यू विल कंसीडर एज अ सेकंड अटेम्प्ट। ओके सुहील, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस डिटेल की। नाउ आप नहीं, then your CMA is cleared in the second attempt only. Group 3 and Group 4 आपने एक बार में क्लियर किया, तो you will be considered as a second attempt will. Okay. Okay. Now, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपने किसी इंडस्ट्री से ट्रेनिंग की है या फिर आप किसी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास आपने ट्रेनिंग की, जो भी फर्म है यहाँ पे नाम लिखना है, आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड डिटेल्स ऑफ द वर्क अंडरटेकन, है ना। बहुत ध्यान से ये भरिएगा, डिटेल्स ऑफ द वर्क अंडरटेकन, बिकॉज I would say that industries are not considered your experienced one, they are taking you as a fresher, लेकिन फिर भी जो एक्सपीरियंस, जो वर्क आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स जो वर्क आप यहां मेंशन कर रहे हैं ये वही होना चाहिए which you are going to mention in your CV. It should not be like that you are mentioning in CV something else and you are mentioning here something else. So the work experience you are mentioning here, it must be aligned with the work experience you are mentioning in your CV. Okay, आपके पास इसके अलावा आपके पास अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री है ना, तो वो आप मेंशन करिए। नाउ आई वुड लाइक टू सजेस्ट वन थिंग, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू टेक यू एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि इफ यू आर डूइंग CA, you are pursuing CA or you have completed your chartered accountancy, don't mention here. Sometime industry
ओवर क्वालिफाइड करके भी आपको हटा सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। द रीजन बिहाइंड इट, दे थिंक दैट अगर आप सीए परस्यू कर रहे हो तो आप उनके लिए लॉन्ग टाइम सोर्स नहीं हो। थोड़े दिन बाद यू आर गोइंग टू टेक लीव फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड इफ यू क्रैक योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम्स, यू विल लीव द कंपनी एंड यू विल जॉइन समथिंग एल्स ऑन अ हायर पैकेज या व्हाटएवर इट इज। आप सीएस परस्यू कर रहे हैं, मतलब आप अगर कोई क्वालिफिकेशन परस्यू कर रहे हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट just avoid that, because यहाँ पर the industry are going to come to recruit you on the basis of your CMA qualification. They don't need any other qualification. तो ये मेरा personal opinion है, just avoid that. आपने IPCC किया हुआ है और you are pursuing CS, whatever it is. ठीक है, अगर मान लीजिए आपने लॉ कंप्लीट किया हुआ है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज वो कोई अलाइनमेंट नहीं है सीएमए की डिग्री से। सो दिस इज द थिंग। कोई और इस बारे में कुछ पूछना चाहता है? और एक और बात, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में करंटली वर्क कर रहे हैं मींस आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस डिटेल है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई डाउट है तो बताइए, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। राहुल, अंकिता, फाल्गुनी, नरसिम्हा, रवि, सुहिल, सोनी, स्पर्श, सृष्टि, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, है ना? तो आपका जो कोई और क्वालिफिकेशन है, डोंट मेंशन। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा डोंट मेंशन हियर सम एनीथिंग एल्स, ठीक है? क्योंकि वो पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं डालती, कभी कभी नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। करंट एक्सपीरियंस आप मेंशन कर दीजिए, या करंट जॉब अगर, हाँ बिल्कुल, जैसे क्या होता है, मैं यहाँ पे आई वुड, सुहिल के क्वेश्चन का मैं जवाब देती हूँ। सुहिल, आज मैम करंट जॉब विल हेल्प और नॉट? सपोज इफ यू हैव नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ओके, and you have a corporate experience, you are already working somewhere, it is going to give you added advantage, because then company understand that you have some work experience and you are going to be an asset of the company from a very first day, because you know the work, you know how to work in a corporate. तो अगर आपका कोई करंट वर्क एक्सपीरियंस है, कहीं आप पे जॉब करते हैं, तो बिल्कुल वो मेंशन कीजिए, इट्स अ गुड। सुहिल, I made a sense. Did you clear about it? Any other question? फाल्गुनी, अंकिता, कोई और आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है तो प्लीज आस्क। कुछ पूछना चाहते हैं? चलिए आगे बढ़ेंगे। और ओके, नाउ देखिए, स्टूडेंट टाइप में भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आप एक्सपीरियंस हैं या फ्रेशर हैं, आप एक्सपीरियंस हैं या फ्रेशर हैं। ठीक है, आप अपना सीवी यहाँ पे चूज कर लीजिए, आप अपना फॉर्म यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। सीवी के बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या क्या आपको मेंशन करना है। योर सिटी ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है, आपका एक 15 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, तो जिस शहर में आप कंफर्टेबल हैं 15 दिन रहने के लिए, वो आप सिटी ऑफ ओरिएंटेशन यहाँ पे चूज कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको सुबह से शाम जाना पड़ता है। तो आप जो आपका नियरेस्ट है, जहां पे आप मोर कंफर्टेबल हैं, वहां पे आप ओरिएंटेशन ज्वाइन कीजिए। 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, आप कोई चॉइस नहीं है, जाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, सेकेंड सिटी आपको प्रेफरेंस है, अगर आपको फर्स्ट सिटी ऑफ ओरिएंटेशन नहीं मिलता है तो आप सेकेंड सिटी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम लोकेशन 4 जगह पर, देयर आर 4 cities इन इंडिया, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। जो भी आपका नियरेस्ट लोकेशन है वो आप चूज कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू एड ऑन हियर, चेन्नई, सॉरी, दिल्ली एंड मुंबई लोकेशंस आर द लोकेशंस यूजुअली देर आर नंबर ऑफ कॉर्पोरेट्स कमिंग। सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट्स अगर कहीं पर आती हैं तो दिल्ली मुंबई लोकेशन पे आती है। ये एक्सपीरियंस कहता है, आई एम नॉट सेइंग कि इस बार कुछ और हो जाए, तो इट मे बी, बट दिल्ली मुंबई लोकेशन पे नंबर ऑफ कॉर्पोरेट्स रहती हैं। तो अगर फिजिबल है तो दिल्ली मुंबई में से कुछ चूज कीजिए, अगर फिजिबल नहीं है तो यू कैन चूज द चेन्नई एंड कोलकाता टू। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, दिस इज द ऑल अबाउट द फॉर्म। एंड स्पेसिफिकली देयर एक बात मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रेडी टू रिलोकेट एनीवेयर इन इंडिया, योर आंसर मस्ट बी यस यस यस। मीन्स कॉर्पोरेट इज सेंसिंग दैट आर यू फ्लेक्सिबल और नॉट, आप क्या इंडिया में कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं? आपको यही बोलना है यस। पाताल में भी ले जाएं तो भी हम कर सकते हैं, कहीं पर भी, एनीवेयर, यस ही आपका आंसर होना चाहिए।
ठीक है, तो ये आपका फॉर्म था। 30th इज द लास्ट डेट, आपको 30th अगस्त से पहले ये फॉर्म सबमिट करना है। टू द बेस्ट ऑफ माई सेंस आई हैव मैम क्लियर्ड द मतलब थिंग्स। यस, पूछिए राहुल, प्लीज पूछिए। फोटो, अपना पासपोर्ट फोटो कैसा होना चाहिए? मतलब कोट पे, पासपोर्ट ब्लेजर पे? साइज, पासपोर्ट ऐसा मतलब वो पार्क वाला फोटो नहीं डालिएगा। नहीं नहीं, सॉरी, मतलब ब्लेजर पे, सूट क्या? पे कैसा? पासपोर्ट फोटो के सादा की ब्लेजर वगैरह का? कैसा भी डाल दीजिए, क्लियर फोटो होना चाहिए, क्लियर इमेज होनी चाहिए। प्रोफेशनल फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, स्मॉल फोटो, कैसा भी डाल दीजिए, रीसेंट जो भी लेटेस्ट आपके पास हो। ओके, और कोई डाउट है पूछिए। ओके, Hello, नरसिम्हा, ma'am. language is was an issue. Are you clear about whatever I have said? Nasima, specifically, my question is from you. Is any doubt? Clear? कोई confusion आपको? संगीता ने अभी ज्वाइन किया है। संगीता, फ्रॉम वेयर यू आर? विच सिटी संगीता? सृष्टि, आज मैम एक्सपीरियंस एज अ मतलब आर्टिकलशिप एज एक्सपीरियंस काउंट होगा क्या? नो, इट्स नॉट कंसीडर्ड एज एक्सपीरियंस, इट्स अ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस मीन्स आपने कहीं पे जॉब किया है, दैट इज दी। एज अ ट्रेनी आपने कहीं काम पे काम किया है, तो सृष्टि वो वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। सो एनी अदर डाउट? ओके संगीता, लखनऊ से, हाँ हमारी यहाँ पे फाल्गुनी भी लखनऊ से है। सो डू यू नो ईच अदर? संगीता एंड फाल्गुनी, डू यू नो ईच अदर? ओके, ओके. Narsima said, I have 4 years education gap. Is there their effect on these, ma'am? It may be, Narsima, but for that we need to focus on your CV, not the CV which you are mentioning here, because यहाँ पर तो जो campus जो form है, your shortlisting depends on that. But the final CV which we prepare, which you are going to take along with you in a campus, we'll craft that CV accordingly so that it don't impact so much on your interview. या सृष्टि, आपका स्टूडेंट टाइप फ्रेशर होगा, बट अगर जैसे जैसे नरसिम्हा ने बोला कि उनका 4 years का गैप है, सो इन दीज 4 years नरसिम्हा, डिड यू वर्क समवेयर? डिड यू वर्क समवेयर नरसिम्हा इन दैट 4 year गैप? तो अगर आपने कहीं पे जॉब किया है तब वो वर्क एक्सपीरियंस कहलाएगा, तब आप एक्सपीरियंस कहलाएंगे, अदरवाइज आप फ्रेशर ही कहलाएंगे। ओके, तो आप फ्रेशर ही लिखिए, तब आप फ्रेशर ही लिखिए। ओके, क्लैरिटी? shall I move ahead? So CMAs, shall I move ahead? Ankita, Falguni, Ravi, Suhil. Okay, okay, good one. So ओके अंकिता, यू हैव टेकन अ डमी। अभी तो हम थोड़ी देर बाद अंकिता इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या आपको सीवी में मेंशन करना है, ठीक है? सो इस ओके अंकिता, सो जस्ट वेट फॉर 5-10 minutes. सो व्हाट आई हैव मेंशन, ये सीवी, ये जो फॉर्म है, मैंने अगेन मैं आपको रिपीट करी हूं, इस फॉर्म पर ही आपकी शॉर्टलिस्टिंग डिपेंड करेगी। तो फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा, जब आप कूल काम मैनर में बैठे हो, विदाउट डिस्ट्रैक्शन। गलती से भी गलती इस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? गलती से भी गलती इस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। आपकी शॉर्टलिस्टिंग इसी फॉर्म पे डिपेंड करेगी। तो बहुत आराम से, काम माइंड होकर, डिस्ट्रैक्शन से दूर जाकर इस फॉर्म को भरिएगा। 30th लास्ट डेट है, 3 दिन है आपके पास, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म में अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। वील ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई और रिजॉल्व योर क्वेरी। ओके, चलिए अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। आज जैसा कि मैंने बोला था, मैं आपसे यहाँ पे सीवीज के बारे में बात करूंगी।
ठीक, तो अब देखिए मैं आपको एक सीवी का एक ब्रॉडर आइडिया यहाँ पे आप दे रही हूँ, पर डेफिनेटली ये जो सीवी है ये हर व्यक्ति अलग है, हर पर्सनालिटी अलग है, सबका काम करने का तरीका, सबका एक्सपीरियंस अलग है। तो ये जो सीवी है ये बहुत एक्सक्लूसिव चीज होती है जो हम हमारे प्रोग्राम में हर व्यक्ति के साथ, हर कैंडिडेट के साथ वन ऑन वन बात करते हैं, वन ऑन वन डिस्कस करते हैं, उसके बाद सीवी प्रिपेयर होता है। तो पर अभी जो आपको सीवी अपलोड करना है, ये यहाँ पर इस सीवी में क्या बेसिक डिटेल आनी चाहिए, आपका 10th-12th ग्रेजुएशन बीकॉम, मतलब आपका सीएमए का रिजल्ट, आपका बेसिक वर्क एक्सपीरियंस, बस उतना इनफ होता है। तो वही डिटेल सही जाए, इसके बारे में मैं आपको एक ब्रॉडर आइडिया दे रही हूँ। देखिए पहला सीवी मैंने आपके सामने खोला है, मोहित का ही इज अ प्राउड डीसीसीएन और ऑल इंडिया रैंक 2 थी इनकी। तो देखिए अगर आपका कोई ऑल इंडिया रैंक है तो इस तरीके से आप अपने सीवी में आप सबसे ऊपर रैंक को मेंशन करें, ठीक है। इसके अलावा एक अपनी, ये आजकल करंट फॉर्मेट चल रहा है तो ट्राई कीजिए इसी फॉर्मेट में आप अपना सीवी बनाएं। ग्रुप में इस सेशन के इमीडिएटली आफ्टर दिस सेशन वी आर गोइंग टू शेयर अ लिंक फॉर दी सीवीज और आर earlier candidates who have already recruited in different corporates, तो you can have an idea from those CVs और उन CVs के थ्रू आप अपना CV बना सकते हैं, ठीक। इसके अलावा आपको एक अपना फोन नंबर, करेक्ट ईमेल आईडी मेंशन करना है, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका फाइनल इंटर फाउंडेशन आपने कब कब किया है, आपकी बीकॉम सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी का परसेंटेज, आपका बोर्ड एंड एवरीथिंग। अगर आपको कोई टेक्निकल स्किल आती है, आपको टैली आती है, आपको ईआरपी आता है, आपको एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल वगैरह, वो एमएस ऑफिस आता है, वो डिटेल आप यहाँ मेंशन कीजिए। योर इंटर्न एक्सपीरियंस, व्हाट इज योर इंटर्न एक्सपीरियंस, जैसे लाइक दिस इज द सीवी जिन्होंने एक्चुअली में इंडस्ट्री में ट्रेनिंग की है, 1.5 ईयर कंप्लीट अपनी ट्रेनिंग की है, तो इनका ये जो वर्क एक्सपीरियंस है रियल एक्सपीरियंस है। आप भी कैंडिडेट जो हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी कहीं पे एक्चुअली में काम किया है, काम सीखा है, रियल ट्रेनिंग की है, तो उनका ये वर्क एक्सपीरियंस है यहाँ पर, सही वर्क एक्सपीरियंस, बिकॉज जिसने काम किया उसको पता है मैंने क्या क्या काम किया है। सो दे कैन मेंशन हियर देयर इंटर्न एक्सपीरियंस। शॉर्ट में आप अपनी हॉबीज लिख सकते हैं, ठीक है, और आपके कोई अचीवमेंट्स हैं, आपकी ऑल इंडिया रैंक है, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, स्कूल लेवल पे आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर में, आप सिंगिंग में, स्पोर्ट्स में, डांस में कहीं पर कुछ अच्छा आपने एक्सेल किया है, आपके कोई सर्टिफिकेट्स हैं, आपके कोई अचीवमेंट्स हैं, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, और अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी है, आप अगर कुछ सोशली एक्टिव रहते हैं, डिबेट वगैरह में पार्ट करते हैं, स्कूल लेवल पे भी हो सकती है, सोशल लेवल पे भी हो सकती है, ये आपको मेंशन करनी है। तो ये एक ब्रॉडर आइडिया है। ये जो सीवी है ये भी उन जो लिंक आपको मिलेगा उसमें होगा, मींस दिस सीवी इज आल्सो इंक्लूडेड इन द लिंक व्हिच वी आर गोइंग टू शेयर जस्ट आफ्टर दिस सेशन। तो ये एक ब्रॉडर आइडिया है। अगर ये सीवी मैंने आपको क्यों दिखाया, व्हाई आई एम शोइंग दिस सीवी टू यू, see if your first attempt, if you are a rank holder, if you have really done your training, actually you have worked somewhere, तो ये सीवी आपका है। ऐसे बहुत सारे सीवीज आपको उस ग्रुप में मिलेंगे, ठीक है। इस बारे में अगर आप में से कोई रैंक होल्डर है, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट है, तो जस्ट रेज योर हैंड। आप में से कोई रैंक होल्डर है, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट है, तो रेज योर हैंड। एनीवन? Rahul is a first attempt, Sparsh is a first attempt, okay, not Rahul, Sparsh is a first attempt, तो स्पेसिफिकली स्पर्श हमको मेंशन करना होगा कि आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट, ओके। चलिए दूसरे सीवी की तरफ बढ़ते हैं। Both are placed, right? Because I'm making you clear okay, if you have done the real training, you will get the placement. If you have not done the real training, even then you will get the placement. Okay. So ये आपके सामने जो CV है, this is a CV. She has not done actual training. She has not learned the work in her articleship period. But इन्होंने भी आप देखिए अपनी क्वालिफिकेशन जो है
मेंशन की है करियर ऑब्जेक्टिव, अगर इनका कोई टेक्निकल स्किल है, MS एक्सेल, MS ऑफिस, वो सब टैली वगैरह इनको मेंशन करना है। अब आप यहाँ पे देखिए, इन्होंने ये जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, ओके, दिस इज अ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस विच इज नॉट रियल, ये रियल नहीं है। इन पर हमारे कैंपस प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान ये सब काम हमने इनको सिखाया, ये सब चीजें हमने बताई इनको कि अगर आपको इनमें से कोई सवाल पूछा जाए तो व्हाट दे कैन आंसर। ओके, तो कोई बहुत हेफ्टी सा भारी भरकम वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बहुत बेसिक सी अकाउंटिंग एंट्री, ITR के फॉर्म, TDS GST के फॉर्म्स, ओके, रिकंसिलेशन के बारे में, डेटर मैनेजमेंट, तो बहुत बेसिक सा वर्क एक्सपीरियंस हमने यहाँ पे लिखा है। अगर आप ने एक्चुअल ट्रेनिंग नहीं की है तो आप भी ये वर्क एक्सपीरियंस अपने CV में मेंशन कर सकते हैं अंकिता, अगर आपने एक्चुअल ट्रेनिंग नहीं की है। एंड इन इफ एनीवन एल्स हु हैज नॉट डन द एक्चुअल ट्रेनिंग, बट अगर आपने एक्चुअल ट्रेनिंग की है तो अपने एक्चुअल ट्रेनिंग वर्क एक्सपीरियंस को ही आप मेंशन करिए। ओके, सो और ये CV भी आपको ग्रुप में मिलेगा, मींस दिस CV इज आल्सो अवेलेबल इन द लिंक व्हिच आई शेयर। सुहिल ने पूछा हाउ मच इज द पैकेज रेंज, सो इट इज फ्रॉम 9 to 10 lakh to 14-15 lakh MNCs अभी दे रही हैं, and if you get the PSU then it would be 16 to 18 lakhs, and if you are a rank holder first attempt then PFC, hats off to PFC, they Power Finance Corporation, they give 22, 27 to 28 lakh, PFC उतना भी देती है। ओके, सो एनी, इसके अलावा यू कैन मेंशन योर अचीवमेंट्स, आपने कोई स्कूल लेवल पे अच्छा गोल्ड मेडल वगैरह लिया हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लिया हो, अगर नहीं भी लिया है तो आप कुछ सोशल वर्क के बारे में मेंशन कर सकते हैं, अपने पर्सनल डिटेल यहाँ मेंशन करनी है। तो आई हैव शोन यू 2 CVs, वन ऑफ एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस, द अदर वन इज हु हैज नॉट डन द एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस। कुछ और अगर किसी को इसमें कोई डाउट है, कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं, सो फॉर कंटेंट वाइज आज के जो सेशन में मैं आपको बताना चाहती थी, आई हैव एक्सप्लेन्ड। आपकी तरफ से कोई कंसर्न हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम, एनीवन, या पूछिए। मैम, in between the gap of campus placements, can we apply for another companies for a job? Okay, you are correct me if I'm wrong. You are saying that apart from the placement, you are applying in another companies also, right? Am I Yes. right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is Yeah. it suggested to apply? Yes, you can, but still I would say that before giving confirmation, go to campus, Okay. because campus you will get a brand name with a package where you need not to negotiate. Okay, so if you get some good opportunity from the campus, go to campus. If not through the campus, then outside the campus, but till the time you don't appear in the campus, make them on a hold. Okay. Okay, Vinay? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yeah, Sangeeta, you want to ask something? Any query, Sangeeta? Okay, anything else? Ankita, Rahul, Ravi, Suhil, Soni, Spad, Srishti, Vinay? Okay. सृष्टि, बेटर ना कलरफुल, अभी तो कलरफुल ही लेके जाइए, इट गिव्स अ गुड विजिबिलिटी, तो आई वुड से द कलरफुल वन। जब सॉफ्ट कॉपी है तब तो वैसे भी कोई इश्यू नहीं है सृष्टि। एंड संगीता, आर यू आस्किंग द कैंपस प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फी? So, okay, so for the campus placement training program fee, yesterday we have put a session on a YouTube video on a YouTube where everything is explained there. और ठीक है, फिर भी बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है तो instantly I should explain that what is the fee. There are 3 version of our campus placement training program. The option A, the option B, the option C. In a option A, there is a free
and you will get the domain session, the technical session, that is a free of cost. In a option B, it is a comprehensive program where you whatever जितनी भी चीजें मैंने आज आपको mention करके बताई, you will get in a option B, individual CV preparation, individual work experience discussion, the communication, the body language part, the GDs, everything you will covered in a option B. And option B में आपको live classes मिलेगी. If you want to come to face to face आ सकते हैं. The recorded session भी आपको मिलेगा ऑप्शन बी में, जो भी क्लासेस हो रही है उसका रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा. तो दिस इज एन ऑप्शन बी. प्राइस इज 5,000. उसमें एक मॉक इंटरव्यू भी होगा. ऑप्शन सी, जहां पर आप रिकॉर्डेड लेना चाहें तो उसकी एक सेपरेट फी होगी 3,000 रुपीज. वहां पे आप केवल रिकॉर्डेड सेशन ले सकते हैं, कोई मॉक इंटरव्यू नहीं होगा, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी. अगर आप एक्सक्लूसिवली केवल एक मॉक इंटरव्यू ही लेना चाहते हैं, इट वुड बी 799 रुपीज ओनली. और ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं कल के वीडियो में. एंड इमीडिएटली आफ्टर द सेशन आई विल पुट दैट वीडियो इन अ ग्रुप. आप वो सेशन देख सकते हैं और वहां से आपको फी का आइडिया हो जाएगा. Because the question bank thing, the individual CV, the work experience discussion, the mock interview, the communication, the body language, ये सब आपको ऑप्शन बी में मिलेगा. दिस इज 5,000 रुपीज कॉस्ट है. और पूछिए, एनी अदर डाउट, एनीथिंग एल्स? नथिंग? टेक्निकल पोर्शन में क्या सिखाएंगे? संगीता, आपने लेट ज्वाइन किया. मैंने इस वीडियो में सब एक्सप्लेन किया है. कॉस्टिंग, अकाउंट्स, टैक्सेशन, डीटी, आईडीटी, लॉ, ऑडिट, सबके बारे में बताएंगे हम. क्या आपसे पूछा जाता है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है. थोड़ा सा उसको ब्रश अप करेंगे, प्रोविजंस को. ये सब टेक्निकल सेशंस में होगा, टेक्निकल पोर्शन में होगा. दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. Ma'am, the classes are going to be in English or Hindi, ma'am? Yes, Vinay, please come again. Classes are going to be in English or Hindi, ma'am? I'm not understanding what you are saying. Just type the chat, please. Type the chat, Vinay. Ma'am, he's asking that whether classes are conducted in English or Hindi mode. Okay, in a language in which I am talking to you. Like if you are getting me right now, you will get all the faculties. Okay, Vinay. Yes. Ma'am, I have Yes. one doubt, ma'am, regarding resume. Ma'am, is resume should be mandatorily in template mode or like in simplified mode, In any like form. 88 format? Look, देखिए, what I said, that your shortlisting will be based on your form, right? So right now, up to 30th, when you are submitting your form in any template, you can mention your CV. If you put your CV in a template which I have shown you, it would be a better looking. And उसमें कुछ करना नहीं है ना. Like I am sharing the sample CVs to you. किसी का भी CV उठाओ in that format, put your detail, that's it. So कुछ मुश्किल नहीं है ना. So you can take the format, just put your picture, change the detail, that's it. Okay, ma'am. Okay. Okay. Yes. Or any other doubt? You will just after the session, you will get the link in your group, in which group you have joined. You will get the Zoom link where you will get the CV link. You just from there you can get the template. Okay, Suhail? Yeah. Any other doubt? No, ma'am. Nice to meet you, ma'am. Thank you. Thank you. Sangeeta, Sumat, Rahul, Ankita, Falguni, Suhail, Ravi, Soni, No, Spur. ma'am. No, ma'am. Nice to meet you, ma'am. Yeah, okay. Sangeeta asked Excel, Power BI, Tally, GST return, ये सब सिखाएंगे. The practical portion. So, Sangeeta, like, definitely not the Excel, not the Power BI.
not the tele. अगर ये आपको सीखना है तो आपको एक सेपरेट प्रोग्राम में एनरोल होना होगा, बिकॉज ये कैंपस प्रिपरेशन के लिए है। ये जो आप बात कर रहे हैं संगीता, दीज आर द एक्सक्लूसिव टेक्निकल स्किल्स। तो यहाँ पे हमारा समय कंटेंट भी होता है, ये प्लेटफॉर्म भी नहीं है कि वहां पे बहुत डिटेल में एक्सेल, टेली, बीआई, पावर बीआई वगैरह सिखाया जाए। For as far as the GST return, the income tax return, we will show you a template. ठीक है, हम आपको पोर्टल शो करेंगे, हम आपको बताएंगे कि देखो यहाँ पे रिटर्न भरा जाता है एंड ऑल। सो नाउ as far as the campus placement interview is concerned, they are not going to test you on a portal कि आप ना चलो आप पोर्टल खोलो और अब आप ये फॉर्म भर के दिखाओ। नो, they are going to assess you on the basis of, do you know for outward supply which return is filled, do you know for annual which is the form of an annual return, what is the purpose of that return. So that's it, the GST and the income tax return. So we'll make you show on a portal that ऐसा return भरा जाता है, that's it. But as far as the Power BI, Excel, बाकी सब है वो नहीं, यहाँ पे possible नहीं होता है, समय टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है, एंड दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म फॉर दैट। वो आप अलग से सीख सकते हैं, अगर आपको सीखना है तो यू जस्ट लेट मी नो, आई विल अरेंज द क्लासेस। बिकॉज मैं आपको यहाँ पे बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, दे कमिट समथिंग, बट यहाँ पे फॉल्स कमिटमेंट नहीं कर सकते आपको, बिकॉज योर करियर इज ऑन स्टेक। Ravi or Soni, Srishti, Vinay, so anything, any other doubt, or is it a good time to close? लगभग 50 से 60 घंटे की क्लास होती है, अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 hours are there, and in a day it may be 1 hour, it may be 2 hour, sometime it may be 3 hour. So till the campus, we just hold your hand. Okay. So thank you so much. Thank you so much, all the lovely CMAs. I know, I'm very much confident that you are going to rock in your campus. But जो भी आपको प्रिपरेशन करनी है, अपना जी जान लगा दीजिए। ये 1 महीना बड़ा क्रूशियल है, और आपकी लाइफ जो है, इट इज गोइंग टू टर्न 360 डिग्री इफ यू गेट अ प्लेसमेंट इन अ गुड कॉर्पोरेट। ठीक है, बिकॉज द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गिव्स यू अ वॉइस टू टेक योर डिसीजन टू मूव अहेड इन योर लाइफ, राइट? तो जी जान से लग जाइए अपने कैंपस प्रिपरेशन के लिए। दिस इज अ वेरी क्रूशियल time of your life. Because I got selected in Vedanta group through campus, so I have experienced this campus. It is a life long experience anyone can have. Okay, chaliye, all the best. So I am closing this session today. For tomorrow's session, you will get the timing and the link in the same group. Okay, bye bye, take care.